वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा है कि हमारे हुकूक और मुतालबात की तकमील के लिए मरकज़ से जदोजहद की जाएगी। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मरकज़ी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए एक और बैनुल-अक़वामी कंपनी ड्रिल मेक SPA आगे आई है। ये कंपनी ऑयल ड्रिलिंग रिग की तैयारी का काम करती है। इस कंपनी ने तेलंगाना में अपनी तैयारी के प्लांट के क़याम का फैसला किया, जिसके लिए आज कंपनी के जिम्मेदारों और रियासती हुकूमत के दरमियान याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए। ये एक आलमी कंपनी है जो इस रियासत में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी, जिससे तकरीबन 2500 अफराद को रोज़गार हासिल होगा। याददाश्त मफाहमत की तकरीब बेगमपेट की एक होटल में हुई। इस मौके पर तारक रामाराव ने कहा कि अगर मरकज़ ताउन करे तो रोज़गार के हज़ारों मौक़े पैदा करने की तवक्को है। रियासत में सरमायाकारी को अहमियत दी जा रही है। मुल्क की 4 अहम रियासतों में से तेलंगाना एक है। Special incentives for industrialization to encourage more employment creation as part of the Andhra Pradesh Reorganization Act 7.5 years ago. Now, tomorrow, Government of India is set to present its next budget. I think this will be the 8th budget after the formation of Telangana. And we continue to wait, in spite of our numerous pleas, in spite of our numerous requests, we continue to wait on the delivery of the promise made to the people of Telangana and also Andhra Pradesh. Both states were made a promise that we would be getting special industrial incentives. None of that has materialized. In spite of that, of course, Telangana continues to grow. The other thing I also wanted to point out, we have been appealing to the Government of India that it can't just be good sloganeering, just making a slogan, coming out with a slogan like Make in India won't just make it happen. You'll also have to back it with some reforms, with some solid policies, and with infrastructure creation. As part of the vision of our Honorable Chief Minister, we are launching, in fact, we've launched India's largest textile park in Warangal, called as the Kakatiya Mega Textile Park, and we're also set to launch Hyderabad Pharma City, which will be the world's largest pharma cluster. So these two large manufacturing, destinations and manufacturing activities, which will create a lot of employment, we have sought support from Government of India. Unfortunately, we have not received much response, much encouragement. Likewise, we've also sought creation of new industrial corridors. 6 new industrial corridors have been requested by our Honorable Chief Minister, the Government of India, on several occasions in the last 7.5, 8 years. Unfortunately, even that has not materialized. I hope and I pray that when the government presents its budget tomorrow, because Honorable Prime Minister, keeps espousing the Sabka Saath, Sabka Vikas mantra. He says, Team India, we have to carry every state along. But a progressive state like Telangana, which is the 4th largest contributor to Indian economy, if you continue to ignore us, if you continue to, overlook us just because of our ideological and political differences, it would be a great travesty, it would be a great tragedy, in terms of promoting industrialization in the country, in terms of creating more employment, in terms of your whole Make in India campaign, in terms of your whole. So please keep your promises. To keep the promises that you've made to the people of this country, to the people of Telangana, to the people of Andhra Pradesh, and to ensure that our children get more and more jobs by way of these, activities that can be promoted and propagated more effectively by progressive states like Telangana. So. रियासती वज़रा एर्राबल्ली दयाकर्रा और श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तरक्की और मुलाजिमतों के मामले में तेलंगाना का अहम रोल रहा है। इन वज़रा ने हनमकुंडा ज़िला कलेक्ट्रेट के करीब नौ तामीर शुदा तेलंगाना गज़ेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इन वज़रा ने आने वाले दिनों के दौरान रियासत की तरक्की में मुलाजमीन के बेहतर रोल का दावा किया। बाद इन वज़रा ने हनमकुंडा में सिंथेटिक ट्रैक का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला एक मंसूबे के तहत काम करते हैं, जिस पर अमलावरी के लिए वज़रा दिन रात जद्दोजहद करते हैं। పరిస్థితి ఏంది వైకుంఠ ధామం ఆ గ్రామం అందంగా తయారు చేయటం ఇదివరకు ఒక గంగదేవి పెళ్లి చూపెట్టేది దేశం అంతా దాన్నే చూపెట్టేది ఇవాళ అన్ని ఊర్లు గంగదేవి పెళ్లి మించిపోయినాయి ఎవరు అధికారుల కృషి కాదా అది ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రణాళిక ఇచ్చాడు అది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఏ స్కీమ్ పెట్టినా
వాళ్ళ ఇంటింటికి మనం సర్వే చేయాలి, ఫీవర్ ఉన్నది ఫీవర్ చేయాలంటే 3 డేస్లో కొట్టి పారేసారు అధికారులు. పరిశాన్ అవుతారు. కేంద్రమే మేము ఒక రివ్యూ మీటింగ్లో కేంద్రంతో మాట్లాడితే ఇట్లా చేసిండ్రు అని అంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు. ములుగు నుంచి అందరూ వరంగల్ వస్తామంటారు. మన ములుగులో ఎవడు పని చేయాలా? ఆలోచన చేయాలి. మనదే కదా జిల్లా కదా. అందరు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత రేపు రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాం. రిక్రూట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అన్ని ఫుల్ అప్ అయినాయి అనుకో, ఇక్కడ వేకెన్సీ లేవు అనుకో, మన పిల్లలకి ఇక్కడ వరంగల్లోకి ఎట్లా ఉద్యోగాలు చేయాలా? మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా చూసుకోవాలి కదా. కనుక ఏదైనా మ్యూచువల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకేమైనా ఇండివిజువల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు కేస్ బై కేస్ చేసి పరిష్కారం చేసుకోవాలి. పెద్ద సమస్య కాదు. దేశంలో హైయెస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇక్కడ చేసినాం. 1,33,000 ఉద్యోగాలు రిక్రూట్మెంట్ చేసినాం. 15 లక్షల ఉద్యోగాలు ప్రైవేట్లో వచ్చినాయి. కరోనాలో కూడా గూగుల్ లాంటి కంపెనీలు మా కేటీఆర్ గారు సమర్థవంతమైనటువంటి ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ ఉన్నారు కనుక గూగుల్, యాపిల్ ఏదో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఏ రిక్రూట్మెంట్ చేసినా కోట్లు వేస్తున్నారు. ఏమైనా రెగ్యులర్ చేద్దామన్నా కోట్లు వేపిస్తున్నారు. కోట్లు వేపించి కాకుండా చూసి మళ్ళీ ప్రభుత్వం మీద. कबायली नौजवानों ने तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के मुहासिरे की कोशिश की। उन्होंने इस मौके पर रियासत में कबायलियों की आबादी की मुनासिबत से उन्हें रिजर्वेशन के फ़ीसद में इजाफे का मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर गिरिजन शक्ति तंजीम के कौमी सदर के बशमूल बाज़ एहतजाजी तलबा को वहाँ पहले ही से चौकस पुलिस ने हिरासत में लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कबायली तलबा ने इसे गैर कानूनी गिरफ्तारी से ताबीर किया और हुकूमत के रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी की। MRO दफ्तर बहादुरपुरा में चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें चोरों ने कंप्यूटर के मॉनिटर की चोरी कर ली। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। MRO ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चोरों ने अंदर घुसकर अलमारियों को खोलकर चोरी की कोशिश की, जिसमें नाकामी पर वो अपने साथ कंप्यूटर के मॉनिटर को लेकर चले गए। आदाब, मैं MRO बहादुरपुरा है। आज MRO ऑफिस में चोरी के लिए अननोन पर्सन्स आए। 4 डोर्स और 5 अलमारस ओपन करके वो चोरी करने के ट्राई करे, मगर कोई भी उनको नहीं मिले। पूरा फाइल्स है, कैश ऑफिस में कैश भी कुछ भी नहीं। एक कंप्यूटर का मॉनिटर चोरी लेके गए वो लोग। वजह क्या हो सकती कंप्यूटर का मॉनिटर? 3,000 आए थे। शादी मुबारक मॉनिटर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन रहे तो CP में रहते हैं ना। मॉनिटर में कोई कुछ भी नहीं रहते। अब गवर्नमेंट से हैदराबाद इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दिए गए कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत उज़्मा ने 6 दिसंबर 2019 को एक वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत रेज़ी और फिर उसको ज़िंदा जला देने के वाक़े के मुलज़िमीन की हुई हलाकत के हालात की जांच के लिए ये कमीशन कायम किया था। मुलज़िमीन मोहम्मद आरिफ, चिन्ना केशवलू, जे शिवा और जे नवीन चट्टानपल्ली इलाके में वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत दरी और बादज़ां इसके जिस्म पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने के वाक़े के मुलज़िमीन थे। इस वाक़े को बादज़ां दिशा का नाम दिया गया था। पुलिस इनकाउंटर में इन मुलज़िमीन की हलाकत के वाक़े पर मुख्तलिफ गोशों से नुक्ताचीनी की जा रही थी। इस वाक़े के 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके साबिक़ जज जस्टिस VS सिरपुरकर की क़यादत में एक कमीशन कायम किया था। इस कमीशन ने पीर को जारी अपने बयान में कहा कि इसने बेशतर शवाहिद बशमूल जांच के रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इनकाउंटर के मुकाम की तस्वीर और वीडियोस का तफसीली तज्जिया किया है। कपड़े सुखाने के लिए मकानदार की जानिब से इजाज़त ना दिए जाने के बावजूद एक किराएदार की जानिब से हठधर्मी और दूसरे किराएदार के एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाने पर हुई बहस व तकरार ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। इस झगड़े के दौरान एक किराएदार के फर्जंद और इसके साथी ने दूसरे किराएदार के नौजवान सलमान और उसके भाई पर हमला कर दिया, जिसमें सलमान और इसका भाई ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या चिंतलमेट में पेश आया। मकानदार बोले मैं इजाज़त तो तुम लोग हैं, इजाज़त नहीं दिया था, ऊपर कहीं को गए। ऊपर कहीं को गए बोले हाँ। और उन लोग मकानदार से ज़बरदस्ती बहस कर रहे हैं। मकानदार से भी बहस बहस करे करे। हाँ, घूरम घूरी हुई, हाथापाई भी हुई। हाँ, हो गई। आप पर हमला हुआ। आप पे हमला करे से वाले कौन है? बच्चे का नाम नदीम है, हाँ। एक बच्चे का नाम
नदीम अकेले आए थे, उनके भाई आए थे या कोई उनका और? भाई आए थे, हसन नगर में रहते हैं। हाँ, और उनके वाली साहब भी हमारे वालदा पे 2 हाथ उठा दिए। वालदा पे भी हाथ उठाए उन्होंने, हाँ भाई पे भी हाथ उठाए। हाँ, उन्होंने अकेले थे, नदीम उनके भाई भी थे साथ? उनके भाई भी थे, 3 जने थे और लगा। अच्छा, खाली उनके भाई। कपड़े सुखाने के बहाने ऊपर आए थे उन लोग, हाँ, जबकि उनको इजाज़त नहीं दी है नहीं मकानदार आपके ऊपर आने के लिए। आप भी किराएदार है, उन्होंने भी उन्होंने भी किराएदार। किराएदार। हमारे बच्चे को मारे, हमारे इंसाफ चाहिए असद साहब से। थोड़ा देर मालूम? पहले ये मैं किधर जाता। मेरे को मारे, मेरे बच्चों को मारे। अब मेरे बच्चे की जान गए तो कैसा? मैं सुबह उठ कर मेहनत को चले जाती हूँ, मेरी बच्चे की जान गए तो कौन देते? मेरा बच्चा ला के देते आप लोगों सब जने। सही है। हाँ, मेरा बच्चा घर में काम कर रहा था, घर पे आके मारे मेरे बच्चे को। अच्छा, पुलिस स्टेशन को गए आप लोग? हाँ, मैं केस करी, मैं पुलिस स्टेशन में असद साहब से लेकिन इंसाफ चाहिए अब। अच्छा, पहाड़ी शरीफ के भाई किशनबाग पहाड़ी पे आई भी हूँ, मेरे को पीएस को मैं केस करी भी हूँ। मेरे का मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मैं सारा दिन नहीं रहती, मेरे बच्चे को धक्का लगे तो मेरे असद साहब से मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को धक्का नहीं लिए दे सका, मालूम? बिल्कुल सही है। वो पीएस में क्या बोले फिर? पीएस में क्या नहीं बोले, कल सुबह में 10 बजे आओ बोले। पीएस वाले से भी मेरे को इंसाफ चाहिए। अरेस्ट करे उन लोगों को? अरेस्ट करें, दोनों FIR करे? हाँ, FIR करे। उनके वाली साहब मेरे को भी मारे। हाँ, जेंट्स को हाथ नहीं, लेडीज को हाथ उठाने का नहीं है। लेडीज को कैसा मारते जेंट्स? उनके वालिद साहब भी आए थे? उनके वाली साहब भी क्या आए नाम थे। है उनके वालिद साहब का? उनके वाली साहब का नाम नहीं मालूम मेरे को, खाजा। खाजा कहते हैं, नहीं मालूम उनका नाम मेरे को। हाँ। उनके वालिद साहब भी आए हुए हैं, मालूम? आज तक हमारे हस्बैंड नहीं मारे, उन्होंने कैसा मार सकते हैं? मालूम? उनके वालिद साहब को अरेस्ट नहीं फिर करे। आप एप्लीकेशन में वालिद साहब का नाम डाले? हाँ, डाली वाली साहब का नाम, उनके वाली साहब का अरेस्ट नहीं करे, वाली साहब को छोड़ दिया उन्होंने। ये कहाँ का पीएस का इंसाफ है बोलिए हम लोगों को? अच्छा, कितने जनों को अरेस्ट करे? 2 जने को अरेस्ट करे। 2 बच्चों को यानी कि बेटों हाँ, को? 2 जने को बेटे नहीं होते, बेटियां हैं उनको, खाली बेटे नहीं है। वो बेटे हसन नगर के कहते हैं ना, दादा है हसन नगर के। तुम्हारा पहले भी ऐसी करे थे। अच्छा, तो ये नीचे के किराएदार के बेटे नहीं होते उन लोग? नहीं होते नहीं। तो वहाँ से आए खास तौर ये झगड़े के लिए? दामाद है, अब एक जरा कौन की है। अच्छा, आके मेरे बच्चे के ऊपर हमला करे, मेरे 2 बच्चों के ऊपर हमला करे, वालदा के ऊपर हमला करे। बच्चे का बाप नहीं है, मालूम? बच्चों को बाप नहीं है। मैं माँ बन के जिला रही, बाप बोल को जिला रही उन लोगों को। मेरे को इंसाफ चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस ने वाजे किया कि रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी तक जद्दोजहद की जाएगी। रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए इन बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने यादगार शहीदों पर एहतजाज किया। इस मौके पर अंजन कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर उन्होंने जदोजहद की थी। तेलंगाना के बिल की मंजूरी के वक्त KCR ऐवान में मौजूद नहीं थे। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि कांग्रेस की वजह से ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सिर्फ एक ही ख़ानदान को रोज़गार मिला है और एक ही ज़ात वालों को वज़ीर बनाया गया है। अंजन कुमार यादव ने रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के मुतालबे के साथ बीजेपी की जानिब से रियासत में मिलियन मार्च निकालने के ऐलान पर भी तनकीद की और ज़ाफ़रानी जमात से सवाल किया कि जब मरकज़ी हुकूमत इसकी मुलाजिमतों को पूरा करने में नाकाम रही तो फिर रियासत में मिलियन मार्च किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है। ఏదైతే ఈ రోజు వరకు తెలంగాణలో 2018 మీరు ఏపించిన బిశ్వాల్ కమిటీ ద్వారానే 191,000 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని చెప్పిండ్రు. ఈ రోజుకి 2.5 లక్షల ఉద్యోగాలు దాటినాయి తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు. ఈ 2.5 లక్షల ఉద్యోగాలకి నన్ను వెంటనే విడుదల చేస్తే తెలంగాణలో 2.5 లక్షల కుటుంబాలు బాగుపడతాయి. అంతేకాకుండా దాదాపు ఈ రోజు తెలంగాణలో నిరుద్యోగంతో మలమలలాడుతున్నటువంటి నిరుద్యోగులు 40 నుంచి 50 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఈ రోజు మాకు ఉద్యోగం లేదని అప్లికేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళే ESPS లో 26 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఈ రోజు వరకు మీకు కనపడతలేదా? ఈ వెంటనే నిరుద్యోగ భృతి విడుదల చేయాలని చెప్పేసి యావత్ తెలంగాణ యువజన కాంగ్రెస్ పక్షాన మేము కొట్లాడుతా ఉన్నాం. 26 లక్షల మందికి 26 లక్షల మంది మొన్న కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఏదో మాటల సందర్భంలో వాళ్ళకు ప్రెస్ మీట్ లో అనడం జరిగింది. దాని గురించి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వాలో ఎవరికి ఇవ్వకూడదో అర్హతలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారంట. ఏం ప్రాసెస్ జరుగుతుందండి? ఏం ప్రాసెస్ జరుగుతుంది? కళ్ళ ముందర 26 లక్షల మంది ఉన్నారు. కళ్ళు తెరిస్తే 2 రోజులు చాలు. ఆ రోజు నువ్వు సర్వేలు చేపించలేదా? ఈరోజు భూములు కొల్లగొట్టడానికి అయితే 2 రోజులు సర్వేలు చేపిస్తావా? అదేవిధంగా నిరుద్యోగుల పక్షాన వాళ్ళకి నిరుద్యోగ వృత్తి 3,000 రూపాయలు. ఆ 3,000 రూపాయలు కూడా వాళ్ళు ఏదో తిరగనీకే కాదు.
बीजेपी के रुकन असम्बली ईटाला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक में मुलाजमीन का काफ़ी अहम रोल रहा है। उन्होंने तहसीलदार एसोसिएशन के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के रवैये की वजह से रियासत 25 साल पीछे हो गई है। इस तकरीब में तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम और दूसरों ने भी शिरकत की। తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఈ డైరీ ఆవిష్కరణలు పెద్ద కోలాహలంగా జరిగేది. వేలాది మంది మన ఉద్యోగుల సమక్షంలో ఆనాటి ఉపన్యాసాలన్నీ కూడా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఉరకలెత్తించే దానికోసమే వేదికలుగా వాడుకునే సందర్భం గుర్తొస్తుంది. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అంటేనే మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల కల్లా గౌరవం ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్, ప్రోటోకాల్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్, ప్రజలకు ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. నాకు తెలిసి పత్రికలో ధర్మగంట పేరిట ఒక అధికార పార్టీ పత్రిక తన సొంత డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని తన వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషించే వాళ్ళని ఎట్లా రాసి రంపాన పెట్టిందో, ఎట్లా ప్రజాక్షేత్రంలో వాళ్ళ దోషులను నిలబెట్టిందో, దానివల్ల ఉత్పన్నమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏందో మనకు తెలుసు. గ్రామాలలో అనాదిగా వస్తున్నటువంటి విఆర్ఏల వ్యవస్థ, విఆర్ఓల వ్యవస్థ ప్రజలకి అంత భరోసా పెరిగి భద్రత పెరిగి దాని మీద పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ ఇవాళ ఈ ధరణి అనేటువంటి నెపంతో అది జరగకపోగా లక్షలాది మంది రైతులు ఇవాళ తన భూమి తనకు లేకుండా, తన ఉన్న భూమి తనకు రాకుండా నిషేధించే జాబితాలో కొన్ని సొంత పేరు మీద ఉన్న భూమిని మళ్ళీ ఇంకొక ఆయన కనుక పేరు ఉంటే ఈ భూమి అంతా ఆయనకు మార్చబడ్డటువంటి సందర్భం. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది, మనం జిల్లాలు కొత్తగా వచ్చినాయి, జోన్లు కొత్తగా వచ్చినాయి. జిల్లాలు జోన్లు కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత జీవో नंबर 124 द्वारा प्रेसिडेंशियल। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी ने कहा है कि उनकी जानिब से किए गए तरक्याती कामों से अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में उनको शिकस्त हुई थी, ताहम 2018 में वो कामयाब करार दिए गए। अवाम जानते हैं कि टीआरएस दौर में किसी भी किस्म की तरक्की नहीं हुई है। जग्गारेड्डी ने कहा कि एमएलए के तौर पर उन्होंने ज़िला संगारेड्डी के अलीआबाद सिद्धापुर में गरीब अफराद के लिए पट्टाजात तकसीम किए थे, लेकिन टीआरएस के रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद से गरीबों को अमकना पट्टेजात तकसीम नहीं किए गए। जग्गारेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वादा किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत बनने पर मजीद 40,000 प्लॉट्स दिए जाएंगे। ज़िला निज़ामाबाद के नंदीपेट में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद डी अरविंद के दौरे के बाद बीजेपी को ज़बरदस्त झटका लगा है। बीजेपी एमपीटीसी 2 अरुणा चौहान के बशमूल कई अहम कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की मौजूदगी में नंदीपेट एमपीटीसी 2 अरुणा चौहान ने गुलाबी खंडवा पहनकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता दिनों आरमूर के दौरे के मौके पर एमपी अरविंद पर मुकामी हल्दी के किसानों ने रुकावट खड़ी की थी। हल्दी बोर्ड के क़याम के वादे को फरामोश कर देने पर डी अरविंद के खिलाफ एहतजाज किया गया था। बताया जाता है कि निज़ामाबाद में बीजेपी की क़यादत से उसके अवामी नुमाइंदे नाराज़ हैं। ज़िला संगारेड्डी के एक बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। ये चोर बैंक की दीवार फांदकर बैंक में दाखिल हुए और दरवाजे के कुफल तोड़कर बैंक के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। चोरी के लिए उनके बैंक के अंदर पहुंचने का मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। इस फुटेज में दिखाया गया है कि ये चोर अपने चेहरों पर नकाब लगाए हुए हैं। पुलकल APGBB बैंक में ये चोरी की कोशिश की गई, ताहम बैंक का सायरन बज गया, जिसकी वजह से ये चोर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। 1 फरवरी से रियासत में रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे की इतलात के पस मंजर में आज रियासत भर के रजिस्ट्रेशन दफातर पर हुजूम देखा गया। हर कोई इजाफी फीस से बचने की खातिर जायदादों की खरीदी की मामला तय करने और रजिस्टर करवाने में तंगदू करते हुए देखा गया।
वाज़ेह है कि हुकूमत ने ज़रूरी और गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफे का हाल ही में फैसला किया था। वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कबायली आर्टिस्ट रामचंद्रिया को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी और कहा कि कबायलियों के लिए एक बड़ा एजाज़ है। मासापटंग में वाक़ कमिश्नरेट ट्राइबल वेलफेयर के दफ्तर में उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रुकन पार्लियामेंट कविता, गवर्नमेंट विप आर कांताराव, कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर क्रिस्टीना और दूसरे शरीक थे। 58 साल रामचंद्रिया मेदाराम यात्रा के मौके पर भी अपने आर्ट और शाकार नमूनों का मुजाहरा करते रहे। వారికి పట్టు వస్త్రాలు, వారికి వారి సతీమణి గారికి పట్టు వస్త్రాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ప్రతి గిరిజన్కి మాకు మేము సన్మానించుకున్న ఆనందంగా ఉంది। ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న మా ప్రభుత్వ విప్ రేగా కాంతారావు గారి వారి సొంత నియోజకవర్గం, వారికి బాగా తెలిసిన వారి జాతి బిడ్డ కావడం, వారు వెంటనే చొరవ తీసుకొని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది వారికి। అలాగే మహబూబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కవిత గారు, మా సెక్రటరీ కృష్ణ చౌంత్ గారు ఇందులో పాల్గొన్నాం। ఏదైతే కనకరాజు గారికి ఆ రోజు ఇచ్చాము 10,000 రూపాయల పెన్షన్, ఆ ఊర్లో వారికి సొంత ఊర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావచ్చు, వారి కుటుంబానికి అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్తూనే ఈరోజు గిరిజనుల ఆత్మగౌరవంతో బతికే విధంగా, మరి వాళ్ళ కళను వాళ్ళు ప్రదర్శించే విధంగా, వారి నైపుణ్యాన్ని వాళ్ళు ఇంకా మెరుగుపరుచుకునే విధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇప్పటికే జోడేఘాట్లో, మేడారంలో మ్యూజియాలు కట్టాం। అలాగే ఇక్కడ కూడా మ్యూజియంను కట్టుకొని మా గిరిజనులు ఎవరు వచ్చినా వారి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉట్టిపడే విధంగా మ్యూజియంను కట్టుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం। మాకు సహకరిస్తున్న గౌరవ चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने पत्थरघट्टी बल्दी डिवीजन में पंजशा के करीब सीवरेज लाइन की तनसीब के काम का मायना किया। कॉर्पोरेटर सुहेल कादरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेएसएमसी और दूसरे भी उनके हमरा थे। मुमताज खान ने इस काम की अजलाना तकमील की मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। जिले सिद्दीपेट में पंचायतों और बल्दियात को मरकज की तरफ से जारी करदा फंड्स की तकसीम में जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि उनके हल्के असम्बली दुबक में सिर्फ टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों और काउंसलरों को यह रकम दी जा रही है और उनके ही हल्के इजात में तरीक़ाती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों को इससे महरूम रखा जा रहा है। रघुनंदन ने कहा कि जिला कलेक्टर और दूसरे हुक्काम ने सवाल किए जाने पर कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दे रहे। हज साल 2022 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में अब 15 फरवरी तक तौसीह दे दी गई है। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने यह बात बताई। उन्होंने आज़मीन से ख्वाहिश की कि वो जल्द से जल्द अपनी दरखास्तें दाखिल करें। दरखास्त गुजारों के लिए ज़रूरी है कि उनका पासपोर्ट 31 दिसंबर 2022 तक के लिए कारकर्द रहे। जामबाग मुजम्मजंग मार्केट में वाक़ बिस्मिल्लाह फ्रूट मर्चेंट की मालिक गीता ने मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल नामपल्ली के मरीजों और तीमारदारों में फल तकसीम किए। उनके जज्बे की ज़बरदस्त सितारिश की जा रही है। गीता ने कहा कि उन्हें मरीजों और उनके तीमारदारों की इस तरह खिदमत करते हुए खुशी के साथ साथ जहनी और कल्बी सुकून मिलता है। वो वक्तन फ़वक्तन दवाखानों को जाकर फल तकसीम किया करती हैं। जय श्री गणेश, जय श्री राम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैंसर हॉस्पिटल है। यहाँ पर मैं हमेशा मेरा जब मन करता कैंसर पेशेंटों को जो है ना बहुत परेशान लोग रहते हैं यहाँ पर। ये लोग को मैं जब भी दिल बोलता आके फ्रूट्स भरती हूँ। ये लोग मैं फ्रूट भरती हूँ तो बहुत खुश होते हैं। अल्लाह इनकी मुश्किल आसान कर दे। लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ इतने बीमार लोग रहते हैं मैं बता नहीं सकती। भगवान उनकी मुश्किल आसान कर दे। जितने भी बीमार लोग हैं उनको सबको मुश्किल आसान कर दे। मेरे परवरदिगार उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनकी परेशानी दूर कर दे और उनको अच्छा होकर हर पेशेंट घर के चले जाए। वो आप हमेशा यहाँ पर फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हमेशा से बांटती में। मेरा जब मन करता 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में जब दिल करता तभी आके बांटती में। मेरा मन बहुत खुश होता है। लोग को खुश देखकर बहुत खुश होता मेरा मन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यनगीता है। मैं बिस्मिल्लाह फूड हाउस की ओनर हूँ। मैं हिंदुस्तान के मशहूर सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स के सिलसिले में टीआरएस पार्टी की तरफ से अजमेर शरीफ को चादर रवाना की गई। वज़ीर दाखिला महमूद अली,
सदर हैदराबाद टीआरएस को रुकन असेंबली एम गोपीनाथ, साबिक एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी, रहीमुल्ला खान नियाजी, लतीफ शरफन, इनायत अली बाखरी, ख्वाजा बदुद्दीन और मसीउल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। महमूद अली ने बताया कि टीआरएस अपने क़याम के बाद से 2001 से हर साल अजमेर को चादर रवाना करती आ रही है और अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम इसी मन्नत का नतीजा है। तेलंगाना भवन से जनाब सैयद भाई साहब और उनकी तमाम टीम की तरफ से और टीआरएस के वर्कर्स की तरफ से अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक भेजा जा रहा है। उसमें आज हमारे ख़ास तौर से नए सदर और डायनामिक लीडर गोपीनाथ साहब जो सिटी प्रेसिडेंट है वो शिरकत किए हैं। हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब, एक्स एमएलसी साहब और हमारे पार्टी के सीनियर सेक्रेटरी और बहुत से हमारे कायदीन आज इस महफिल में शरीक हुए और ये गिलाफ मुबारक 809वां उर्स है, 810वां उर्स है। वहाँ उसमें ये गिलाफ पेश किया जा रहा है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग है जहाँ पर जो मन्नत की जाती है वो पूरी होती और सारे हिंदुस्तान के लोग उन्हें बड़ी अक़ीदत से गिलाफ मुबारक हर साल ज़ियारत भी करते हैं, उसमें भी शिरकत करते हैं और गिलाफ मुबारक पेश करते हैं। और तेलंगाना राष्ट्र समिति भी हर साल से जब से पार्टी का वजूद आया 2014 से आज तक मुसलसिल तेलंगाना बनने के बाद और तेलंगाना बनने से पहले भी जब पार्टी का क़याम अमल में लाया गया था 2001 से, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खुद ज़ियारत की थी, वहाँ मन्नत की थी वहाँ एक रुबात बनाएंगे। उसके लिए एक एकड़ ज़मीन अलाट की गई है, उसके पैसे भी भर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पर तामीर की जाएगी। एक अच्छा सा वहाँ पर एक गेस्ट हाउस रहेगा या एक रुबात रहेगी, वो बनाई जाएगी ताकि जो भी ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं वहाँ ठहर सकेंगे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और पार्टी का भी गिलाफ इंशाल्लाह एक 2-4 दिन में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब रवाना करेंगे और पार्टी के कायदीन भी वहाँ पर बड़ी अक़ीदत से जाते हैं। और एक गंगा जमुना तहजीब अगर रजा आती है तो मजलिसी रुकन असेंबली मौज़म खान ने क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर आज़म की बरसी के सिलसिले में हज़ीर मुशराबाद में साफ़ सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया। उनके हमरा जेएसएमसी मौके में आबरस्तानी और बखी बोर्ड के अहदेदारों के अलावा मजलिसी कायदीन की बड़ी तादाद थी। मौज़म खान ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हज़ीरे में साफ़ सफाई और बरक़ी की सहूलतों की फराहमी के कामों के लिए 17 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर आज़म की बरसी 4 रजब 6 फरवरी को होने वाली है। उसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल इस मशराबाद के दायरे में काम किया जाता है। अब के काम जो हो रहा है दायरे के अंदर 17 लाख रुपए का है। इसके अंदर सीसी की फ्लोरिंग है, ट्रांसफार्मर है, केबल है और मेंटेनेंस ऑफ द खबरस्तान है, जंगल कटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारे साबिक़ा सदर और फाउंडर एमआईएम पार्टी क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर आज़म की हर साल जिस तरीक़े से बरसी आती है, यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से इस दायरे में काम किया जाता है। और आज के इस इंस्पेक्शन में और दौरे के अंदर हमारे जनाब सैयद मोहसिन साहब, जनाब सैयद जावेद साहब और हमारे इस मशराबाद के इलाके के जनाब शाहिद साहब और हमारे जनाब इब्राहिम साहब और दीगर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वर्कर्स मौजूद है। सारा दौरा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ इस काम से और इंशाअल्लाह ताला जो भी और भी काम बाकी रहेंगे ये बरसी के दरमियान के हद तक अंदर वो सारे कामों को किया जाएगा। शुक्रिया आपका। पार्लियामेंट के बजट सेशन का पीर से आगाज होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इजलास के पहले दिन दिलचस्प मनाजिर देखे गए। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी के सरपरस्त और सीनियर पार्लियामेंटेरियन मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करते हुए उनके पैर छुए। तेलंगाना से इम्तियाज़ का इल्ज़ाम लगाते हुए रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान ने आज बजट सेशन के पहले दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तकरीर का बाइकआउट किया। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने अहाता पार्लियामेंट में गांधी जी के मुजस्समे के सामने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने मरकज़ से रियासत को वाजिबुल अदा फंड्स और तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मरकज़ की जानिब से किए गए वादों की तकमील पर भी जोर दिया। పార్లమెంటరీ పార్టీ మీటింగ్ ఈరోజు సీఎం గారు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు. మేమైతే తెలంగాణ పార్లమెంటరీ పార్టీ తరఫున మేమేమంటున్నాం అంటే డెఫినెట్గా ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్ మీద ఆప్టిమిస్టిక్ ఉంటాం. మేము ఎందుకు పెసిమిస్టిక్ ఉండాలి? డెఫినెట్గా తెలంగాణ కోసం మేము చాలా వినతులు పంపినాం. సో తెలంగాణ కోసం ఏమేం చేయాలో అన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎన్ని ఆ బడ్జెట్ రూపకల్పన చేసి ఎన్ని అంశాలు దాంట్లో పెట్టిందో చూస్తాము. ఆ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన దాని తర్వాత మీ అందరితో మాట్లాడు. 23 అంశాలతోటి ఎన్నో లెటర్స్ రాసిన కేసీఆర్ గారు. ఒక పుస్తకం రెడీ చేసినాం దాని గురించి. సో ఆ అంశాలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు. రెడీ రెకనర్గా మొత్తం అంశాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేస్తారు బడ్జెట్లో, ఏమేమి కన్సిడర్ చేస్తారు, ఇన్ని ఇయర్స్ నుండి అడుగుతూ వస్తున్నాం కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ తెలియపోతుంది కదా. అంటే డైరెక్ట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ నుండి ఇక్కడ దాకా ప్రతి యాక్ట్ बजट सेशन के आगाज़ से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासी जमातों और अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो आज़ादाना, बेबाक, तामीरी और बामायने मुबाहिस में हिस्सा लें ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सके। उन्होंने आज से बजट सेशन के आगाज़ पर तमाम सियासी जमातों का इस्तकबाल किया और कहा कि आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान के लिए बेहतर मौक़े पाए जाते हैं। हमारे मुल्क की माशी तरक्की, कोविड की सबसे बड़ी मुहिम और देसी साख्ता टीके की तैयारी ने दुनिया के लिए उम्मीद का जज्बा पैदा किया है। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,09,000 केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 959 अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद 4,13,00,000 से ऊपर चली गई है। कल इतवार को एक ही दिन में 13,31,158 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं 166 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आबादी का 75% हिस्से को वैक्सीन के डोजेस दिए जाने पर अवाम और हेल्थ शोबे से वाबिस्ता अफराद को मुबारकबाद दी है।